Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to do the Olympiad level question of electricity. So basically electricity के अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा है आज हम उसको क्या करेंगे, समथिंग यूज़ करेंगे, राइट? क्योंकि हम उनसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दैम. तो जो भी नॉलेज अभी तक हमने गेन किया है, लेट्स पुट दैट नॉलेज इनटू सम यूज and let's solve the questions which can be said as the level of the Olympiads, right? तो basically ऐसे क्वेश्चन जो ओलंपियाड में ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, लेवल अब वहाँ तक का, राइट? कितना ज़्यादा डीपनेस या फिर कितना ऊपरी लेवल या फिर कितना यू कैन से कंसेप्चुअल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं एंड उसके लेवल के क्वेश्चंस हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट. आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन किया हुआ है सो दैट यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस वेरी मच केयरफुली एंड यू कैन से एट द गुड लेवल, राइट? So you all know that we do deal with the school examinations as well as the Olympiad. So basically we are preparing for both the examinations simultaneously, that we are studying one topic and that topic can lead us to the good marks in the school examination also in the Olympiad level. So basically we are studying like that. Alright, you all know that we deal with the Olympiads also. So basically 6th, 7th and 8th Olympiads along with the NTSC and SCJS PRM for the 9th, 10th and 6 to 10 school examination. That would be our basic criteria and in these classes we are going to preparing for, right? If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You have to write the code TTB08 in the search box of the Telegram app so that you can get the listing of class 8, right? You can join the channel for the class 8 and you can access all the DPPs and study material along with the notifications of the videos. Like that would be a cool thing, right? Now see, on your screen you are seeing the team and this is the most, you can say, team, you can say most important team, because this team is going to help you a lot in your preparation journey. If you are preparing for the school examination, then we are helping you, and if you are preparing for the Olympiads, we are definitely helping you, right? So basically we are providing you the lectures that are free of cost for everyone, and these are the quality lectures from Kota. That means you are going to get a very much useful and you can say organized knowledge from here only, right? So basically you should definitely spread that out to everyone so that you can get that knowledge along with your friends. You can definitely do that, and so that you your aim, right? What is that aim? You want to get good marks in your school examination or you want to crack any Olympiad. That is the aim you should working on with us, right? That will be the most important thing, that if you crack your goals with these lectures, it would be so much beneficial, right? So make sure that you do that, you spread it out to everyone so that everyone can get benefit from this, right? And the second thing I want to tell you that according to these free lectures, we are also providing you the packages, the year-long you can say year-long journey for the package, definitely for any examination you choose to get bested, right? So basically what you need to do is you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. If you go on the website, you will be getting two type of packages for every class. So basically we are having the packages, the full package for every class and the test series one. So if you want to join the full package, you will be getting the various things, and the most important thing also, if you want to crack any examination, what are these? Let's see that. Number one is the comprehensive study material. तो आपको एक comprehensive study material चाहिए, needed, उसका necessary क्या है? That must be important, because किसी भी examination में जिस तरीके के questions आते हैं, जो knowledge आपको चाहिए उन्हें crack करने के लिए, that should be there. उसी तरीके के question should be there. You should practice all the questions. You should study that knowledge, right? You should gain that knowledge. So basically that would be the most important step, and that's why the comprehensive study material is there in the in this package, right? Next you will be getting the recorded and live classes, and that is free for everyone. So basically you also going to get that. Homework submission feature. Homework submission feature is the most important, because doing homework is one of the most important thing. If you want to crack any examination, you should do the homework, because that includes in the self-study section, right? So basically you will be doing the homework, you will be submitting it to us, and definitely we are checking that, right? That is the most important concept also. Next you will be getting the bi-weekly quizzes. Bi-weekly quizzes are like you are going to attempt the quizzes twice a week, where you will be getting the knowledge of the topics which are ongoing and which are being, you can say, studied, right? So basically you are going to attempt that quiz, you will be gaining the knowledge that if you are
very good at the topic, or you can say not comfortable with the topic, so that you can study more about it, right? You can put more effort into it. The next one is the periodic test papers, and that periodic test papers is definitely going to tell you the pattern of the final examination you never go for. So basically, if you want to go for, let's say, NSO, all right, you want to go for the NSO, you want to prepare for the NSO, let's say, then you are going to get the pattern familiar to the NSO, right? So basically, you get familiar with the pattern that will be coming in your examination, and that would be so much helpful, because if you are going to get that information, right, if you are going to get that information, how the questions are appearing in front of you, what is the level of the questions, how much question you are going to attempt, that would be so much beneficial when you are actually doing the paper, right? That would be so much beneficial, and that's why these 5 features are included in the package that is so much helpful to you. If you want to buy them, you can definitely buy them also, right? If you really want to go for the test series only, you can go for that also. Yeah, you will be getting the periodic test papers, recorded live classes, and bi-weekly quizzes in that. So you will be getting all the testing things along with the video lectures, which are free for everyone. So basically, if you are really interested in buying them, remember my code CY Live. So if you write the code, you will be getting 30% discount, right, on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you have any query regarding these packages, you want to know more about that packages, you can call us on the number 919549041111. Right, that would be the important thing, so that you have no doubts about these things, right? And that would be good thing, right? Now let's move on to the next thing, the promise section, right? To promise yourself, you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. So make sure that you do note every question, right? Every question may have some doubts and may not, right? So basically, you should note down the solution of the every question, right? The important points you need to understand those questions, that should be noted also, right? So let's get started. Just we are going to do the questions only, and the questions only. So this is the question number 1 in front of you all. Read that question, all right, and try to do that question. That is the most easiest. You have to just name the diagram. That's it. Label the diagram actually. Right, the question says, in the given figure, electrolyte, anode and cathode respectively are. So tell me, in this given diagram, do you even remember this diagram is from electroplating, right? That is the chemical effect of electric current. So basically this diagram is for electroplating. अब उसके अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी, like we studied cathode, एनोड, कैटायंस, एनायंस, इलेक्ट्रोलाइट, राइट? ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की हुई है, राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई इन तीनों में दिस वन एंड द सोल्यूशन, राइट? इन तीनों चीज़ों को हमें पहचानना है. तो देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टिंग सोल्यूशन, ठीक है? मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, and simultaneously it breaks up into the cations and anions, right? So that is the electrolyte. So basically that liquid is just here as B. So this electrolyte is actually B. All right. All right. So this electrolyte is actually what? B. ठीक है? तो ये जो B part बताया हुआ है, this is the electrolyte here. Alright, so that would be the thing here. Alright, so you can write here B as the electrolyte. So what is electrolyte? I told you, एक ऐसा solution जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करता है, ठीक है? जैसे कि NaCl अगर मॉलिक्यूल है तो Na अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, राइट? तो वो ब्रेकअप कर देता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है? So that solution is known as the electrolyte, and this is happening because of the flow of electric current inside that electrolyte. Alright, तो यहाँ पे हो गया electrolyte, ये हमें पता चल गया. So we can see that कि भाई B जो है वो electrolyte है. Alright, अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो पहला word electrolyte है, तो that should be B here, right? तो हमारा A कैंसिल और D कैंसिल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट को A बता रहे हैं, बट A इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, है ना? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन डी आर द कैंसिल वन. अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो तुम, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स यू कैन से ऐसे टर्मिनल्स होते हैं
जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या तो एंटर होती है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइट में से जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो दो ऐसे इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ये अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, राइट, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से आएगा तो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक करंट इस सोल्यूशन में जाएगा एंड थ्रू दिस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से क्या होगा, अपवर्ड चला जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इट बिकम्स अ क्लोज्ड कंडक्टिव पाथ। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो प्लस एंड माइनस, आई टोल्ड यू अ ट्रिक टू रिमेंबर द इलेक्ट्रोड्स एंड देयर यू कैन से द पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने तुम्हें बताया था एक ट्रिक, व्हाट वाज दैट, डोंट पैनिक। ठीक है, अब ये जो ट्रिक है ना पैनिक वाली, वो मैंने तुम्हें क्या बताई थी, मैंने बताया था P फॉर पॉजिटिव, ठीक है, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इज एनोड, ठीक है, पॉजिटिव इज एनोड एंड N फॉर नेगेटिव, C फॉर कैथोड। So I told you positive is anode, negative is cathode. So you can get that कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्टेड कौन हुआ, पॉजिटिव इज एनोड, so पॉजिटिव से कनेक्टेड कौन हुआ, दिस वन इज द एनोड। ऑलराइट, एंड क्या बोला है, नेगेटिव इज कैथोड, so that means negative is connected to the cathode, so negative terminal is connected to the कैथोड। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो होगा कैथोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा बैटरी के, वो हो गया एनोड। ठीक है, तो मतलब ए जो है वो एनोड है, सी जो है वो कैथोड है। ठीक है, तो यू कैन गेट दैट, एनोड पूछा है ना सेकंड में, एनोड मीन्स ए, तो दैट शुड बी ए, राइट, दैट्स व्हाई वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, सी इज फॉर कैथोड, सो यू कैन राइट दैट आउट। रिमेंबर टू नोट द ट्रिक हियर, डोंट पैनिक। मैं इसे क्या करती हूँ, एनसर्कल कर देती हूँ, सो लेट मी एनसर्कल दैट, डोंट पैनिक। सो पैनिक से आप याद रख सकते हो। ठीक है, फटाफट फटाफट नोट करेंगे सभी। ऑलराइट, चलो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, है ना, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द बल्ब ग्लो। ठीक है, इन चारों सिचुएशंस में से, चारों सिचुएशन में से किस में बल्ब ग्लो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, डेफिनेट सी बात है, एंड वी कैन सी दैट इसमें भी बैटरी है, इसमें भी बैटरी है, इसमें भी बैटरी है, इसमें भी है। ठीक है, तो अब देखो हमारी एक चीज़, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ था बल्ब को ग्लो करवाने के लिए, वो था क्या, पहले इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए। सोर्स हमारे पास है, चारों में है। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने देखा, देयर शुड बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो भाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो चारों में है। ठीक है, सेकेंड हम लोग देख सकते हैं क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, देयर हैज टू बी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। मतलब क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, अगर हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब द लिक्विड शुड बी एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो हम लोग ये कह सकते हैं, या फिर लिक्विड शुड बी एन इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई जो भी लिक्विड यहाँ पे दिए हुए हैं ना, वो सबके सब क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो बल्ब ग्लो करेगा, बट अगर वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं तो वो बल्ब ग्लो नहीं करवा पाएगा। लेट्स चेक दैम वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज द कैरोसिन हियर। कैरोसिन, आई टोल्ड यू, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये जो सारे के सारे लिक्विड्स हैं, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, दैट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और वो जो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकअप होता है वो नहीं होता, राइट, दैट मीन्स दिस सोल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा तो देयर वुड बी नो क्लोज पाथ ड्यू टू विच दिस बल्ब ग्लो। सो बेसिकली ए ऑप्शन में बल्ब ग्लो नहीं करने वाला बिकॉज ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
सेकेंड में आप देखो शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन जो होता है वो भी क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता। लेट मी टेल यू द फैक्ट है, शुगर सोल्यूशन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द ऑप्शंस है। डिस्टिल्ड वाटर, आई टोल्ड यू डिस्टिल्ड वाटर और यू कैन से प्योर वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड को हम प्योर भी बोल सकते हैं। सो डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग बोलने वाले हैं दैट इट विल ऑल्सो will not conduct electricity and that's why bulb will not glow. Last is the sodium chloride. Sodium chloride is a salt solution first of all. Salt solution है, ऊपर से this is an electrolyte. Electrolyte कैसे हुआ? Electrolyte में ये क्या होगा, जैसे ही इस solution के अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा, वैसे ही क्या होने लगेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसे हम NaCl लिखते हैं ना, तो यहाँ पे NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो Na+Cl- में टूट जाएंगे, दे विल बिकम आयंस एंड ड्यू टू दैट आयंस फ्लो, एंड जैसे ही आयन फ्लो करेंगे देयर वुड बी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, right? So you can see here कि sodium chloride is the only electrolyte here which can conduct electricity, along with it can definitely break up the molecules of the sodium chloride, right? So basically we can say that कि D option is the one जिसके अंदर electric current जो है flow करेगा, due to which the bulb will glow. Alright, so first of all हमें क्या क्या चेक करना था, सबसे पहले हमें ये चेक करना था कि भाई इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो वो सोर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि भाई देयर शुड बी द क्लोज कंडक्टिंग पाथ, और यहाँ पर हमें चेक करना है लिक्विड के केस में दैट लिक्विड इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ दैट मीन्स इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली इट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द सोडियम क्लोराइड। ऑलराइट, नोट दिस डाउन, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। चले आगे, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, लेट्स सी व्हाट डज इट से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज अ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू नॉट। कन्वेंशनल का मतलब मैंने तुम्हें बताया था दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो दैट इज लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, दैट इज दी लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑल्सो अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द movement of electrons. ऑलराइट, तो मतलब कन्वेंशनल करंट जो है वो इस तरीके से बताया गया कि भाई जहां पर भी जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो करंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, लाइक टोटली अपोजिट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर हमें कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट को नॉर्थ डायरेक्शन में भेजना है, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट को नॉर्थ डायरेक्शन में भेजना है तो इलेक्ट्रॉन शुड फ्लो टुवर्ड्स द साउथ, अपोजिट होना चाहिए ना, राइट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द ईस्ट, this is west, this is north, this is south. Let's read all the options. Protons in a beam are moving due south. Protons जो है एक बीम में, ठीक है, let's say कि protons जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं तो मतलब करंट भी साउथ की तरफ ही जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोशन ऑफ यू कैन से द पॉजिटिव चार्जेस, राइट। तो दैट कैन बी टेकन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज नॉट द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, ये साउथ में जा रहा है, हमें चाहिए ड्यू नॉर्थ, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक करंट कहाँ चाहिए, नॉर्थ की तरफ चाहिए, बट इट इज गोइंग इन द साउथ डायरेक्शन, सो दिस इज इनकरेक्ट,
ठीक है। फिर देखो, अ वाटर मॉलिक्यूल इज मूविंग ड्यू साउथ, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स नो चार्ज, राइट। अब नो चार्ज दैट मीन्स नो इलेक्ट्रिक करंट, सो बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन अ बीम आर मूविंग ड्यू साउथ, इलेक्ट्रॉन साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो अगर तुम खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साउथ की तरफ अगर जा रहे हैं, सो वी आर सेइंग दी इलेक्ट्रिक करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे साउथ में जा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जा रहा होगा, नॉर्थ की तरफ, राइट। तो दैट शुड बी द इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट्स व्हाई वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ। कन्वेंशनल का मतलब जब शुरुआत में पता चला, ठीक है, तो उसको क्या लिया गया, इलेक्ट्रॉन जहां भी फ्लो करते हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ये बोला गया, ठीक है। एंड यहीं पर हमें ये चीज देखनी है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसके ठीक अपोजिट हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। एंड दैट इज वाई, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन साउथ की तरफ जा रहे थे, सो वी विल बी गेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन नॉर्थ अपोजिट डायरेक्शन में। ऑलराइट, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। Alright, note this down and then we will be doing the next question. Alright, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बता रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी लो एज कंपेयर टू अ मेटल एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा सके, ठीक है, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि भाई वो कैपेसिटी जिसकी वजह से किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, दैट मीन्स उसके पास कंडक्टिविटी ज़्यादा हुई, ठीक है। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत ही कम फ्लो हो सकता है, बहुत ही कम फ्लो होता है, ठीक है। तो वी से दैट कंडक्टिविटी बहुत ही लो है, ठीक है। और अगर हम ये बोले कि भाई किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाता ही नहीं, फ्लो ही नहीं हो पाता, दैट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे बताते हैं कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है अगर हम कंपेयर करें किससे, मेटल से। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसमें पहले तो आयंस बनते हैं, ब्रेकिंग अप होता है, राइट, आयंस बनते हैं, वो आयंस फिर फ्लो होकर इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाते हैं। सो इट इज लाइक अ प्रोसेस जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि भाई ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी लो होती है, बिकॉज वहां पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से द चार्ज कैरियर्स बहुत ही कम होते हैं अगर हम बात करें तो, ठीक है। अगर एक फिक्स्ड क्वांटिटी की बात करें तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां से जो कि कैरियर होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को लेकर जा रहे हैं या फिर जिसकी वजह से, जिसके फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक मेटल की बात करें तो मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, राइट, वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। रीज़न क्या है उसका, उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इस कंडक्शन में, करंट के फ्लो में हेल्प करते हैं, राइट। दैट्स वाई जो मेटल की कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट 2 देखो, फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है, कि ये तो सच बात है बिल्कुल। सेकंड वाला देखो, द डेंसिटी ऑफ फ्री आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट इज मच स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, राइट। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, शुरुआत में देखो जब करंट जा ही रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर,
इलेक्ट्रोलाइट इज द सोल्यूशन, ठीक है। उसके अंदर जब करंट जा ही रहा होता है तो उस जगह पे तो टूटना शुरू होते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट, टूटना शुरू होते हैं, धीरे धीरे आयंस आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आते हैं, राइट। तो वो जब आना शुरू होते हैं दैट इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऊपर से जब आयंस ही नहीं होते, जो टूटना शुरू ही हो रहे, तो धीरे धीरे आयंस बढ़ते हैं, ठीक है। और आयंस भी तभी तक बढ़ सकते हैं जब तक कि वहां पे सारा का सारा मॉलिक्यूल, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट है, तभी तक, राइट। बट मेटल के अंदर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं हो रहा होता, राइट। उनका जो यू कैन से सीधे सीधे वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दैट्स वाई एक तो ये भी बात है कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, बल्कि अगर हम आयंस की बात करें इन द इलेक्ट्रोलाइट तो वो बहुत ही कम उसमें होते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू होती है उनकी, नंबर ऑफ आयंस बहुत ही कम होते हैं, एंड जिसकी वजह से डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। सो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को। सो वी कैन से दैट कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, डेफिनेटली, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। यहाँ पे हमें बस इतना ही समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है तो फर्स्ट इट गेट आयंस डन, राइट। पहले तो आयंस को बनाना पड़ता है, ब्रेक करने के, मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहा है एंड देन आयंस आर फॉर्मिंग, देन दे आर मूविंग। सो बेसिकली वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आर वेरी लो एज कंपेयर टू द मेटल, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंपैरिजन में, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज पॉसिबल, राइट। सो यू कैन नोट दिस डाउन। Alright, now let's move on to the question number 5. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, इन द एक्सपेरिमेंट इफ ए इज प्लेटेड विद कॉपर द एनोड विल बी। अब लिसन टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो एनोड क्या होता है, एनोड इज व्हाट एक्चुअली द नेगेटिव वन, पॉजिटिव वन, राइट। तो बेसिकली लुक, सो देखो हम लोगों ने पैनिक देखा था भाई, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, तो यू कैन रिमेंबर द पैनिक वन। सो इससे क्या हुआ भाई, पॉजिटिव आ गया है एनोड, सो एनोड इज द पॉजिटिव वन, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें इन दोनों में से एनोड पहचानना है तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और लेकिन क्योंकि देखो मैंने पता किया कि भाई पॉजिटिव होता है एनोड, तो दैट मीन्स क्या होगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, लेकिन हमें तो यहाँ सिर्फ बैटरी लिखाई में आ रहा है, तो मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसकी तरफ है, ए की तरफ है या बी की तरफ है, हमें ये पता नहीं चल रहा। लेकिन हमें हिंट दिया हुआ है, क्या हिंट दिया हुआ है, ए इज प्लेटेड विद कॉपर, ए इज प्लेटेड विद कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ, ए के ऊपर कॉपर की प्लेट चढ़ाई गई, ठीक है। कॉपर के जो यू कैन से कॉपर के जो आयंस होते हैं दोज आर द पॉजिटिव आयंस, राइट। तो वी कैन से जो कॉपर के आयंस होते हैं दीज आर द कैटायंस, ठीक है। ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एंड दे कैरी लेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मतलब इन्हें क्या चाहिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। अब ये जो कॉपर आयंस होते हैं वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढते हैं, जहां इन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं कि वहां चले जाते हैं। अगर ए के ऊपर कॉपर को प्लेट किया गया, मतलब सारे के सारे कॉपर के एटम्स जो हैं, आयन जो हैं, कैटायंस जो हैं, वो सारे के सारे ए की तरफ आ रहे हैं, मतलब जितने भी Cu2+ आयंस हैं वो सारे के सारे इसकी तरफ मूव करके इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, ए के ऊपर। अब सोचो तुम खुद से, पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब ये जो ए पार्ट है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव पे कनेक्ट होगा तभी तो कॉपर के पॉजिटिव आयंस इससे अट्रैक्ट होंगे, राइट। एंड इसकी वजह से वी कैन से दैट नेगेटिव इज कैथोड, तो दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली कैथोड, ठीक है। ये क्या है, कैथोड है, और जब बचा ये कैथोड हो गया तो दूसरा कौन बचा, एनोड, राइट। सो बेसिकली बी इज द एनोड, तो हमें पहचानना था एनोड कौन है, एनोड इज द B1, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ हिंट दी थी कि भाई ए को क्या किया गया, कॉपर से प्लेट किया गया, मतलब कॉपर के सारे एटम्स ए पे जाके स्टिक होने लगे, राइट। तो उसके एटम जो हैं, जो आयंस हैं कॉपर के, वो तो पॉजिटिव होते हैं और वो डेफिनेट सी बात है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे,
ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला दैट दिस शुड बी नेगेटिव, दैट मीन दिस शुड बी द कैथोड, ठीक है। अब क्योंकि ये कैथोड है तो कौन बचा, एनोड, तो दैट मीन्स अपोजिट वन वुड बी द एनोड वन। ऑलराइट, नोट दिस डाउन। Alright, now let's move on to the question number 6. ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है when electricity is passed through calcium nitrate solution in water, मतलब वाटर जो है और कैल्शियम नाइट्रेट सोल्यूशन है वो मिक्सड अप है, ठीक है, मतलब दैट इज दी यू कैन से डाइल्यूट कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। व्हाट इज लाइकली टू बी फॉर्म्ड एट द कैथोड एंड व्हाई, कैथोड एंड वाई, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव से देखना चाहें तो हम ये बात जानते हैं कि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो अगर यहाँ पर हमने क्या किया गया है, यहाँ पे लेट्स से दिस इज लाइक कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, तो दिस इज CaNO3 2, ठीक है। सो दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड दिस वन नेगेटिव पॉजिटिव। सो यू कैन गेट दैट कि दिस वन इज द कैथोड, ऑलराइट। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। तो दैट मीन्स कैथोड अगर नेगेटिव होता है दैट मीन्स वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस को, राइट। एंड पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, एक्चुअली में पॉजिटिव आयंस, राइट, दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयन that means they have less electron, that's why they are positive, alright। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर, क्योंकि यहाँ इसके अंदर क्या है, वाटर मिक्सड अप है, राइट, इसके अंदर H2O ऑलरेडी मिक्सड अप है, ठीक है। सो वी कैन गेट दैट कि जो H+ आयंस होते हैं, राइट, अगर 2H+ आयन अगर कैथोड की तरफ चले जाए तो दे कैन मेक दी H2, alright, they can definitely make the H2, right। तो बेसिकली वी कैन गेट दैट कि ये जो H2+ आयंस है वो सारे के सारे कहाँ डिस्चार्ज हो जाएंगे, कैथोड पर, बिकॉज दे अट्रैक्ट द नेगेटिव, दे विल बी गेट अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव। सो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन होता है वो किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है। एंड ऐसा क्यों होता है, कैल्शियम क्यों नहीं और बाकी जो यू कैन से फॉर्मेशन जो होगा यहाँ पे वो क्यों नहीं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कैल्शियम होता है वो बहुत ही यू कैन से लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, नॉट द कैल्शियम बट द हाइड्रोजन, ठीक है, इट इज़ लाइक लेस रिएक्टिव। और दैट्स वाई कैल्शियम के कंपैरिजन में अगर हम देखें, ठीक है, कैल्शियम के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव एंड दैट्स वाई इट हैपेंस कि वो हमेशा क्या करता है, कैथोड की तरफ मूव ऑन करता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द पॉजिटिव नेगेटिव। एंड दूसरे रीजंस भी इसके यही है। सो वी कैन से दैट कि हाइड्रोजन ही कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन कैंसिल आउट दी ऑप्शन हियर, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। हाइड्रोजन बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव देन कैल्शियम, hydrogen because it is less reactive than calcium. So basically I can tell you that hydrogen is actually less reactive than calcium, ठीक है। So basically we can say that option C is the correct one, ठीक है, you can note this down। All right, now let's move on to the question number 7 here। question number 7 क्या बोलता है, let's see। देखो question number 7 हमें क्या बोल रहा है, an electric current is passed through a conducting solution, ठीक है। तो एक solution जो कि conducting है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया गया। following are the some observations, so these three are the observations here, ठीक है। deposits of metal may be seen on electrode, it can happen because we have seen कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जो है मूव करता है, सो बेसिकली तब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बता सकते हैं, राइट। जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है, किसी भी कंडक्टिंग सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट जाता है, तभी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस हो पाती है। सो इट कैन हैपन, डेफिनेट सी बात है, इट कैन हैपन।
सो डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, ट्रू, ऐसा हो सकता है. सोल्यूशन में गेट हीटेड, इट मे बी हैपन, it may happen because heating effect तो definitely होगा ही होगा, right? So it may get happen. Bubbles of gas may be formed on the electrode, so it is also happening, right? जैसे H2 अगर बनता है, so it can be it can form like in the form of bubbles and definitely you can get that, ठीक है. और on any of the electrodes, किसी भी electrode पे ऐसा possible हो सकता है. There can be possibility of the gaseous release, right? Because H2 and O2 हमें अलग अलग अगर मिल सकते हैं, so basically we can get the bubbles also, right? Solution heat up हो सकता है, true बात है, because हम heating effect से भी वाकिफ हैं, right? Deposit of metal में भी seen on electrode, हमने electrolyting में देख ही लिया है. So basically अगर हम बोले तो ये तीनों हो सकते हैं, true हो सकते हैं, right? तो all जो है first, second, third are the true ones, alright? You can note this down. All right, now let's move on to the question number 8. Question number 8 क्या कहता है? Let's see. बहुत ही अलग question है, ठीक है. देखो चलो अभी हम कहते हैं in the given figure, ये figure हमें दिया हुआ है, ठीक है. The filter paper contains starch soaked in potassium iodide solution is connected to the battery as shown. क्या किया गया, ठीक है, एक फिल्टर पेपर, ठीक है, उसको क्या किया गया एक्चुअली, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर उसको रखा और उसके ऊपर स्टार्च भी हम लोगों ने लगाया हुआ था, ठीक है. सो ठीक है, एक ऐसा फिल्टर पेपर जिसके ऊपर स्टार्च है, ठीक है, उसको क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर हमने उसको एज एन इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है. अब देखो क्या हुआ, when we write on the wet paper it has a blue black color. तो जैसे ही हम लोग wet paper पे लिखेंगे, वो जो हमने you can see the filter paper, right? जो filter paper था उसको हमने जो लगाया था, अगर हम wet paper पे लिखें so it turns blue black, right? तो there are two statements about this situation. Iodine is formed at the anode, anode पे iodine form हुई, iodine turns blue black in the presence of starch, ठीक है. सो ये चीज़ हमें बोलिए, तो हम क्या ये रिलेशन जानते हैं कि आयोडीन की वजह से, बिकॉज ऑफ द आयोडीन, क्योंकि अब स्टार्च का प्रेजेंस है, राइट? क्योंकि हमने क्या किया था पहले, फिल्टर पेपर को उसके ऊपर स्टार्च लगा के देन वी डिप्ड इट इनटू द आयोडाइड सॉल्यूशन, राइट? सो वहाँ पर जो आयोडीन है, ठीक है, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट आयोडीन, तो वो क्या करेगा, स्टार्च की प्रेजेंस में तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, राइट? ब्राउन कलर का जो हमारा आयोडीन है वो ब्लू ब्लैक टर्न कर जाता है, कलर चेंज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. सो बेसिकली यस, आयोडीन इज फॉर्म्ड एट द एनोड, राइट? तो एनोड पे आयोडीन फॉर्म होगा, बिकॉज ऑफ दैट ब्लू ब्लैक इंक हमें नजर आएगी. ऑलराइट, सो वी कैन से दैट कि ये दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, राइट? सो वी कैन से बोथ आर द करेक्ट वन. सो बेसिकली ये एक रिएक्शन है जो आपने डेफिनेटली केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, राइट? स्टार्च की प्रेजेंस में जो ये ब्लू ब्लैक इंक कलर चेंज हो जाता है, राइट? यू कैन डेफिनेटली डू दैट. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देखो हमें इनकरेक्ट बताने कौन से स्टेटमेंट्स गलत है ये बताने हैं, ठीक है. एनोड इज एन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. वी ऑल नो दैट इज द करेक्ट वन बिकॉज आई टोल्ड यू द पैनिक वर्ड, राइट? सो वी गेट दैट पॉजिटिव इज एनोड. सो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होता है एनोड. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड देखो, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. येस, आई टोल्ड यू डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, ये जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी ट्रू हो गया है. थर्ड देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स. आई टोल्ड यू सो, राइट? कभी भी जैसे इम्प्योर मेटल है तो हमें क्या करना होता है, उसमें से मेटल निकालना है, इम्प्योरिटीज हटानी है. इन दैट केस इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत अच्छा ऑप्शन है. तो उसके अंदर क्या होता है, हमें प्योरिटी मिल सकती है, प्योर मेटल्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑप्शन, ठीक है, ये भी ट्रू है. तो बचा इकलौता हमारे पास, आयंस कैन हैव ओनली ए पॉजिटिव चार्ज.
दैट इज द इनकरेक्ट वन बिकॉज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस. ठीक है, हमें ये बात पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस. द वन इज द पॉजिटिव वन. ठीक है, पहला वाला पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन. इसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं. ठीक है, और जो सेकेंड वाला है दैट इज द नेगेटिव आयन. और ये जो नेगेटिव आयन है उसे हमने क्या बोला है? एनायन बोला है. ठीक है, so basically that is the thing. There are two types of ions, positive and the negative. So this is the incorrect statement and that's why we can say this is the incorrect statement and this is the correct option for this question. ठीक है, तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ आयंस को नोट कर सकते हैं. Alright, now let's move on to the question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, अब की बार हमें करेक्ट पहचानना है. करेक्ट क्या होता है देख लेते हैं. वाटर कैन बी यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स. नेवर एवर डू दैट. ठीक है, क्यों? बिकॉज हमें ये बात पता है कि नॉर्मल टैप वाटर होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, राइट. और अगर ऐसा कभी हुआ, मान लो कि कहीं पर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया हो और कोई फायर वहाँ पे लग गई हो, सो ऐसा नहीं करना है कि आप जाके टैप वाटर उस पर जो है फेंक दो. इससे क्या होगा? इससे नुकसान और ज़्यादा होगा. बिकॉज क्योंकि वो टैप वाटर होगा जिसकी वजह से वाटर में इम्प्योरिटीज होंगी, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू दैट. ठीक है, वो कंडक्ट करता है जिसकी वजह से जहां जहां वो पानी जाएगा वहां वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा. और गलती से भी किसी के ऊपर अगर चला गया तो दैट मीन्स उसको भी इलेक्ट्रिक करंट का जो है शॉक लग सकता है. सो मेक श्योर दैट कभी भी ऐसा नहीं करना है. जब कभी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अगर हो जाए तो अगर आपके पास सैंड अवेलेबल है तो यू कैन डेफिनेटली थ्रो आउट द सैंड ओवर इट. ठीक है, तो दैट इज द गुड थिंग. ऑल्सो आपको क्या करना है? फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करना है. ठीक है, तो मेक श्योर यू यूज दैट. ठीक है, सो ये जो है ये इनकरेक्ट है कि भाई नहीं, पानी यूज नहीं हो सकता. ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के लिए आपको क्या करना है? पानी यूज नहीं करना जब उसकी वजह से कहीं पर भी फायर लग जाए. ठीक है, मेक श्योर यू लर्न दैट. ऑलराइट, सेकेंड देखो, कार्बन इज अ नॉन मेटल सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. नो, it is a metal you can say. मतलब if you use it electrolytic cell में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कार्बन के होते हैं, right? That's why we can say this is incorrect statement. This is an incorrect statement. Next देखो, a liquid conducts electricity because of the presence of ions. डेफिनेटली, बिकॉज देखो वायर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन एक लिक्विड के अंदर देयर हैज टू बी आयंस. ठीक है, देयर हैज टू बी आयंस, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है. अगर आयंस नहीं प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा. और यही रीजन है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिक करंट नहीं करवा पाता कंडक्ट, बिकॉज प्योर वाटर के अंदर तो आयंस ही नहीं होते. ठीक है, दैट्स वाई प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. एंड वी कैन से दैट कि ये जो लिक्विड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ठीक है, वी कैन से दैट. तो दिस इज द करेक्ट वन, है ना, ये करेक्ट है क्योंकि लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस. ठीक है, लास्ट आप देखो डी ऑप्शन बोल रहा है प्योर वाटर फॉर्म्स आयन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. And I'm telling you that pure water does not conduct electricity because it does not have any ions, it does not have any, you can say, impurity inside it, right? That's why we can say कि ये ions को form नहीं करता है, it does not conduct electricity. That's why we can say कि ये option भी हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया. So only option correct is the option C here. Note this down.
ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है. Which of the following cells use electric current to produce a chemical reaction? तो देखो अब की बार हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सेल चाहिए जिसको इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, वो केमिकल रिएक्शन करवा रहा है. ठीक है, सो दैट कैन बी डन हियर. ठीक है, तो हम देखते हैं ड्राई सेल. सबसे पहले देखते हैं ड्राई सेल. ड्राई सेल के अंदर क्या होता है. ड्राई सेल जो कि हम नॉर्मली अपने रिमोट्स में यूज करते हैं, टॉय कार्स में यूज करते हैं, राइट. सो बेसिकली वो जो सेल होता है ड्राई सेल, उसके अंदर पहले रिएक्शंस होती है एंड देन वी गेट द इलेक्ट्रिक करंट, राइट. तो बेसिकली रिएक्शंस पहले होती हैं. ठीक है, तो ड्राई सेल के अंदर क्या होता है, पहले केमिकल रिएक्शंस होती हैं एंड देन हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. ठीक है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि हमें तो एक ऐसा सेल चाहिए जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन ड्राई सेल के अंदर ठीक अपोजिट होता है. ड्राई सेल के अंदर पहले केमिकल रिएक्शन होता है एंड देन वी गेट द इलेक्ट्रिक करंट. ऑलराइट, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सोलर सेल. अब ये सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल एक्चुअली में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड देन इट कन्वर्ट दैट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. सो बेसिकली यहाँ तो कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि भाई ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट वन. थर्ड देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किससे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोलाइट से. और इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करवाते हैं, पहले तो क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इट ब्रेक्स द मॉलिक्यूल्स एंड देन इट ब्रेक्स द मॉलिक्यूल्स, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, राइट. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक current enters and then chemical reaction occurs, right. So we can say that कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई वी कैन से सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. और बोथ ये बोला गया है तो ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो यू कैन नोट दिस डाउन. ऑलराइट, तो देखो इस तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. सिर्फ हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, नॉलेज जो हमने क्लासेस में अटेंड की है. ऑलराइट, एंड बस यही करना है तुम्हें. देन यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड यू कैन डेफिनेटली क्रैक ऑन योर एग्जामिनेशंस टू. So make sure you practice all the questions given to you, right? So make sure you do that. And if you have any query, you can comment in the comment section. All right, so that would be it in this lecture. All right, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you.